Alright, so we have question 9 over here, which says in a triangle ABC, equation of side BC is x minus y is equal to 0. Circumcenter and orthocenter of the triangle are 2, 3 and 5, 8 respectively. Equation of the circumcircle of the triangle is 4 options are given. Alright, so first let's refresh the students with what a circumcircle means and what an orthocenter means. A circumcircle is a circle which passes through the 3 vertices of the triangle, and since we know that to 3 points only a unique circle is possible, the circumcircle is only one. Okay, so there's only one circumcircle possible. Right, and what's an orthocenter? It is a point of intersection of the altitudes of the triangle. Okay. And the most important property which we are using here is the reflection of the orthocenter of a triangle with respect to any side lies on the circumcircle. Okay, so let me tell you that again, since it's a very important property. What it says is, if you take the reflection of the orthocenter of the triangle about any line of the triangle side. ABC, any side of the triangle ABC, let it be AB, BC or CA, any one of them, then that reflected point will lie on the circumcircle of the triangle ABC. Since we know the circumcenter and a point on the circumcircle, we can easily find the equation of the circumcircle. Okay, circumcenter is already given, which will be the center of the circumcircle, and the point we can find using the property that I just mentioned. We can find the equation of the unique circumcircle. So let's see how we'll solve this question. Proceed with this. The equation of side BC is given x minus y equals to 0. Okay. So we'll write it. And since from the straight lines chapter we know how to find the image of a point, we'll directly proceed on finding the image of the orthocenter. Let x, y be the image of the orthocenter. So we'll have Right, that we know from the chapter straight lines, how to find out the reflection of a point. that's why we're directly substituting that. So the point that we've got here, x, y, is nothing but the reflection of the orthocenter about the line BC of the triangle ABC. Okay. And this will lie on the circumcenter. We know circumcenter is 2, 3. Right. So the center of the circumcircle is 2, 3. Right. Which is given to us, circumcenter. And one of the point on the circle is 8, 5. So we know the radius of the circumcircle as the distance between the 2 points, since the radius is the distance between the center and any point of the circle. Right. Okay. So now we have the center and we have the radius of the circumcircle, and we can find the equation of the circumcircle. Let the equation of circumcircle be S. So it is given by right. So on rearranging, so this is the equation of the circumcircle. Okay, so what we saw in this question was that we had to find the circumcircle of the triangle ABC. Now, as we stated that the circumcircle of any triangle is unique, since circle passing through any 3 points will be always unique if there is a circle passing through those 3 points. So, the circumcenter was already given to us. All we had to do was we had to find out a we had to find out a point on the circumcircle so that we can find out the radius, and we can use the radius center form of the circle to find the equation of the circle. So for finding out that point, we used a very important property, and let me state that again for you. The reflection of the orthocenter of the triangle about any side of the triangle lies on the circumcircle. This property we used, orthocenter was given, side was given, we found out the reflected point, and from there we got the radius of the circle. Now there could be various modifications of this question as to like the orthocenter was directly given here, so they could ask you to find out the orthocenter, or they could have given you the point, one of the points on the circumcircle, so all you had to do was find out the equation of the circle directly. So those could be the changes that you could see in this question. Alright, so that was question number 9.
All right, so we have question 10 over here which says, let a circle be 2x into x minus a plus y into 2y minus b is equal to 0, where a and b are not equal to 0. Then the condition on a and b, if two chords each bisected by the x-axis can be drawn to the circle from point a comma b by 2 is a square more than 2b square, a square less than 2b square, a square is equal to 2b square और none of these. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम कैसे अप्रोच करेंगे इस क्वेश्चन को? पहले हमें ये याद रखना है कि क्वेश्चन में डायग्राम नहीं दिया होगा तो हमें अपना डायग्राम खुद बनाना है. ओके, तो ये ध्यान रखिए कि ये डायग्राम हमने खुद मेहनत करके बनाया है, दिया हुआ नहीं है पहले से क्वेश्चन में. ठीक है, तो अब क्या करना है? तो हम पॉइंट a कॉमा b बाई 2 को p एज्यूम करते हैं. ठीक है, और p q p r दो कॉर्ड हैं. Right. और a एंड b उनके मिड पॉइंट्स हैं. मिड पॉइंट्स क्वेश्चन में दिया है कि बाइसेक्टेड बाय द एक्स एक्सिस. ओके, तो इसका मतलब है कि जो उसका जहाँ पे वो बाइसेक्ट हो रही है वो लाइन, उसका जो मिड पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पे लाई करता है. वो दोनों कॉर्ड्स के. तो अभी हम इक्वेशन को थोड़ा चेंज करेंगे ताकि इजी होगा बाद में. ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल से. इसको डिवाइड बाय 2 उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे जहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होता है. तो हमें पता है अगर हमें कॉर्ड का मिड पॉइंट पता है तो उसका कॉर्ड का इक्वेशन s1 इक्वल्स s11 से मिलता है. सो हम अगर हम s1 इक्वल्स s11 अप्लाई करेंगे, जो हमने थ्योरी क्लास में देखा था कि हमें मिड पॉइंट अगर मालूम है तो हम वो डायरेक्टली s1 इज इक्वल s11 लगा सकते हैं. और पॉइंट t, 0 है अपने हमारे क्वेश्चन में. तो वो s1 इक्वल्स s11 लगाने पर तो आपने t, 0 ही क्यों अज्यूम किया? उसका कुछ स्पेसिफिक रीज़न है? क्योंककि हमको पता नहीं है कि एग्जैक्टली क्या है. सो हम एक पैरामीटर लेंगे. t एक पैरामीटर है. ओके, तो अगर हम पैरामीटर लेंगे तो जितने पॉसिबल केसेस होंगे सब हमको मिलेंगे. ओके ओके फाइन. सिंस यहाँ पे 2 पॉइंट्स है, a, b हमें पता नहीं है वो क्या है, तो हमने रैंडमली t, 0 अज्यूम कर लिया ताकि जो भी पॉसिबल केसेस सब पता चल जाएंगे इन टर्म्स ऑफ t. राइट. ओके, और हम अगर t के ऊपर हम कंडीशंस लगाएंगे तो हमें अपना जो इनइक्वालिटी चाहिए a स्क्वायर तो 2b स्क्वायर के बीच में मिलेगा. ओके, तो अभी हम फाइंड कर रहे हैं इक्वेशन ऑफ कॉर्ड. इसको हम रीअरेंज कर रहे हैं. ओके, और हमें पता है कि दोनों कॉर्ड्स पी क्यू और पी आर के ये पैरामीट्रिक इक्वेशन है. और दोनों कॉर्ड्स ए कॉम बी बाई 2 पॉइंट से पास होते हैं. राइट, क्योंकि हमने कॉर्ड्स बनाए ही उस पॉइंट से, तो वो पॉइंट दोनों कॉर्ड्स पे लाई करेगा. तो हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं वो पॉइंट, जो कि हम आगे करने ही वाले हैं, अभी कर रहे हैं. अगर हम इसे ध्यान से देखें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है टी में. राइट. और इसको हम रीअरेंज करेंगे कुछ इस प्रकार आएगा. और क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन किया है कि हमें 2 कॉर्ड चाहिए. एग्जैक्टली, 2 डिफरेंट कॉर्ड्स चाहिए, तो हमें फिर 2 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए होंगी एक्स एक्सिस के साथ. और हमें पता है कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स 2 है और उन दोनों रूट्स को अगर अलग रियल एंड डिस्टिंक्ट होना है तो कंडीशन है d ग्रेटर देन 0 ऑन अ डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0. तो अगर हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर अप्लाई करेंगे तो हमें टी का कंडीशन मिलेगा जिससे कि पी क्यू और पी आर 2 अलग अलग कॉर्ड्स हो. ओके, तो आप ये कह रहे हैं कि सिंस हमें 2 डिस्टिंक्ट कॉर्ड्स चाहिए तो हमें 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए होंगे, जिसके लिए हमें 2 डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ t चाहिए, और उसके लिए हम कंडीशन लगा रहे हैं डिस्क्रिमिनेंट मोर देन 0. ओके, देखिए कितना सिंप्लीफाई हो जाता है क्वेश्चन. सो अभी हम उसको अप्लाई करेंगे. इसको रीअरेंज करेंगे. ओके, तो ये कंडीशन लगा दी डिस्क्रिमिनेंट मोर देन 0, और फिर उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें ये कंडीशन आती है कि योर a स्क्वायर इज मोर देन 2b स्क्वायर, जो कि ऑप्शन 1 है. ओके, तो इस क्वेश्चन में हमने बेसिकली ये देखा कि आपको एक पॉइंट दिया हुआ था और आपको कुछ कंडीशन दी हुई थी कि उससे अगर हम कॉर्ड बनाते हैं तो वो एक्स एक्सिस से बाइसेक्ट होता है. ठीक है, क्वेश्चन में काफ़ी कुछ दिया हुआ है, देख के डरिए मत. पहले तो सिंप्लीफाइड डायग्राम बना लीजिए. उसके बाद हमने सिंस हमें पॉइंट्स नहीं पता थे इंटरसेक्शन के, ए और बी नहीं पता था, हमने t, 0 अज्यूम किया सिंस वो एक्स एक्सिस पे लाई करता है. और फिर आपको क्वेश्चन देखते ये स्ट्राइक होना चाहिए कि अगर आपको मिड पॉइंट पता है किसी कॉर्ड का, तो हमने थ्योरी क्लास में देखिए कि उसके लिए एक फॉर्मूला होता है s1 इज इक्वल s11. वो डायरेक्टली अप्लाई कर दिया इक्वेशन ऑफ कॉर्ड निकालने के लिए. अब आपको पता है कि आपका p उस कॉर्ड पे लाई करता है, तो p डाल दिया उस इक्वेशन में. इसके बाद बस एक चीज़ इसमें बचती है कि सिंस आपको 2 लाइन्स चाहिए, आपको 2 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए,
तो फिर वो बॉयल डाउन होता है इस चीज़ पे कि आपका डिस्क्रिमिनेंट मोर देन 0 है, जिसके लिए आपको कंडीशन आ जाती है। तो क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप अप्रोच कीजिए, पहले इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, देन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एट द कॉर्ड एंड देन सो ऑन। तो बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई हो जाता है क्वेश्चन, और मिड पॉइंट देखते आपको सबसे पहले वो स्ट्राइक होना चाहिए कि S1 इज इक्वल टू S11। ऑल राइट, सो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 10। Alright, we have question 11 over here, which says the radius of the circle touching the straight lines x minus 2y minus 1 is equal to 0 and 3x minus 6y plus 7 is equal to 0 is, 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसमें हमें रेडियस फाइंड करना है, 2 लाइंस दिए हुए हैं, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे? फर्स्ट थिंग, डायग्राम नहीं दिया होगा, इसमें भी हमें खुद बनाना होगा। हाँ, उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है कि इस क्वेश्चन में हमें नोटिस करना है कि दोनों लाइन पैरेलल है, और हम डायग्राम बनाने के आप देख रहे हैं कि x माइनस 2y है और सेकेंड वाला टर्म 3x माइनस 6y विच इज थ्राइस ऑफ दैट। ओके, तो डायग्राम बनाने के बाद हमें समझ में आएगा कि वो लाइंस के बीच का डिस्टेंस डायमीटर है। ओके, सो हमें पता है अगर 2 लाइंस पैरेलल है तो उनके बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, स्ट्रेट लाइंस में सीखा था हमने। राइट, तो पहले हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर हम 2 पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो उनका x और y कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए। राइट, क्योंकि आपका जो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस निकालने का, उसमें आपको डिनोमिनेटर में a² प्लस b² टर्म होता है। तो अगर आप दोनों लाइंस को सेम फॉर्म में नहीं लेके आएंगे तो आपका a² b² होगा क्या? आप कैसे डिटरमाइन करेंगे कि क्या है? या तो आप फर्स्ट लाइन को सेकंड लाइन के फॉर्म में लेके आए या फिर सेकंड को फर्स्ट में लेके आए, ताकि आपका एक यूनिक a और b आए। तो इस क्वेश्चन में हमने फर्स्ट को सेकेंड में कन्वर्ट किया है, सिंस सेकेंड इज थ्राइस ऑफ द फर्स्ट, तो हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ लाइन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये बहुत मेजर चांस है मिस्टेक करने का, मेजर स्टूडेंट्स यही मिस्टेक करते हैं। राइट, ये क्वेश्चन आसान है लेकिन ये मिस्टेक की वजह से ही बहुत लोग गलती करते हैं। हाँ, इसमें गलती ये हो सकती है कि आपने दोनों लाइंस को सेम फॉर्म में आप नहीं लेके आए और आपने डायरेक्टली आप डिस्टेंस निकालने के लिए आपने फॉर्मूला लगा दिया। तो हमें पता है फॉर्मूला, हम सीधे अप्लाई कर रहे हैं। राइट, ये डायमीटर है। ओके, तो रेडियस आएगा हाफ ऑफ द डायमीटर विच इज़ √5/3 विच इज़ ऑप्शन बी। अच्छा, तो ये क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा सिंपल था कि हमें लाइंस दी हुई थी और दोनों लाइंस पैरेलल थी, हमने डिस्टेंस फाइंड कर लिया जो कि डायमीटर है। बट हर बार ऐसा नहीं होगा कि आपको लाइंस दी हुई है वो पैरेलल है। अगर सपोज दोनों लाइंस इंटरसेक्टिंग हैं तो उस केस में हम क्या करेंगे? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। और Okay. इसका सोल्यूशन हम इस प्रकार करेंगे Okay. कि अगर ऐसे दिया है कि 2 लाइन हैं और उन पैरेलल नहीं है और Right. उनके बीच का है, तो हम पहले हमें समझना होगा कि डायग्राम ऐसा आएगा। Exactly. 2 लाइन, उनके बीच का एंगल 2 थीटा। और हमें एक और चीज़ समझना है, अगर 2 लाइन दी है तो उनमें से बहुत सारे सर्कल्स पॉसिबल है। मीन्स अभी सर्कल एक यहाँ पे बना है ऐसा, दूसरा सर्कल ऐसा आ सकता है, या छोटा सर्कल आ सकता है। तो अगर हमें निकालना है तो क्वेश्चन में पहले उनको एक सेंटर डिफाइन करना होगा। ओके, तो आप कह रहे हैं कि अगर मुझे 2 इंटरसेक्टिंग लाइंस दी हुई हैं तो मैं डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ द सेंटर काफ़ी सारे सर्कल्स बना सकती हूँ। अगर यूनिक सर्कल चाहिए तो या तो उनको मेरे को या तो वो सेंटर दे सकते हैं या फिर वो सपोज डिस्टेंस ऑफ सेंटर दे सकते हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। बट ऐसा हमारा पैरेलल लाइंस के केस में इसलिए नहीं होगा क्योंकि आपको मल्टीपल सर्कल्स आएंगे बट हर किसी का आपको रेडियस सेम होगा, है ना? हाँ। मतलब सेंटर्स अगर अलग अलग है तो आपका सर्कल राइट लेफ्ट शिफ्ट होगा, बट आपका जो सेंटर है जो रेडियस है वो सेम ही रहेगा किसी भी कीमत पे। तो उसमें हमें फिर उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं कि सेंटर क्या है अगर रेडियस निकालना है। तो जब ऐसा होगा तो अगर दिया है, अगर सेंटर आपको पता है और लाइंस पता है, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढ लेना। और सेंटर दिया है तो डिस्टेंस ढूंढना, या फिर क्वेश्चन में ही उन्होंने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और सेंटर का डिस्टेंस दिया होगा। सपोज और डी है तो या तो वो डिस्टेंस दे सकते हैं PNC के बीच में या फिर वो सेंटर दे सकते हैं। ओके, तो हमको फिर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे जिससे हमको रेडियस मिलेगा r = S11 - d²। ओके, नहीं, राइट, S11 माइनस सॉरी √ S11 मीन्स d बड़ा है, Right. d हाइपोटेन्यूज है, इसलिए d² - So S11। d² - S11 का √ will be your this thing radius. ओके, उसके बाद हमें सेंटर तो या तो दिया हुआ था, तो हमने क्या किया कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर लिया 2 लाइंस का। फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और सेंटर के बीच में डिस्टेंस फाइंड कर लिया d। अब S11 तो हमारा डायरेक्टली p हम अगर सर्कल की इक्वेशन में डालेंगे तो हमारा S11 आ जाएगा जो कि है लेंथ ऑफ tangent from point P drawn to the circle, right, which will be equal on both sides.
उससे हमारा रेडियस आ जाएगा। तो हमें क्या पता है, हमें सेंटर पता है, हमें रेडियस पता है। अगर या तो हम पूरा इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड कर सकते हैं, या फिर अगर बस रेडियस दिया हुआ है तो हम रेडियस भी फाइंड कर सकते हैं। और उसमें एक और चीज़ हो सकती है कि आपको सेंटर देने की बजाय आपको डायरेक्टली डिस्टेंस दिया हुआ है P और C के बीच में। तो ये हमने एक इंटरेस्टिंग मॉडिफिकेशन देखा फर्स्ट क्वेश्चन का। फर्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इजी था, उसमें आपको मल्टीपल सर्कल्स आए भी तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि रेडियस सेम ही रहेगा, बट इस केस में रेडियस वेरी करेगा डिपेंडिंग ऑन द सेंटर। ऑल राइट, इंटरेस्टिंग। दैट वाज क्वेश्चन नंबर 11।